So hello students, today we are going to study class 6 English chapter 1st. So before starting, I want to request all of you to please take out your books and read along with me. So let's start. My 5-year-old daughter Minnie cannot live without chattering. So what is the meaning of the word chattering? Chattering means बड़बोला, means बहुत बोलने वाले को chattering बोलते हैं. I really believed that in all her life she was not wasted a minute in silence. Her mother would often tell her to stop her prattle. ये prattle लिखा है. Prattle का means क्या होता है? Long talk about unimportant things. But I would not. Her mother would often tell her to stop her prattle, but I would not. So this is a story. Who is narrating the story? Who is telling the story? Father. About whom? Her daughter. About her daughter. So one morning, as I was working on my new novel, and who was working on the new novel? I was working on a new novel. Minnie's father was working on a new novel. So Minnie stole into my room, put her hand on mine and said, Father, Ramdayal the gatekeeper calls a crow a caro. He doesn't know anything, does he? Before I could explain this to her, she jumped to another subject. Father, she said, Bhola says there is an elephant in the cloud. It blows water out of its trunk and that is why it rains. So ये कहानी एक फादर अपने बच्चे के बारे में बता रहा है कि वो एक दिन एक बुक लिख रहा था, तो उसकी बेटी उसके रूम में आई और उससे कहने लगी, पापा, रामदयाल जो अपना गेट कीपर है, अपना चौकीदार है, वो क्रो को कारो बोलता है, और जो अपना भोला है, जो अपने यहाँ काम करता है, वो बोलता है कि क्लाउड्स में एलिफेंट रहते हैं और वो बरसात करते हैं अपने ट्रंक से. सो द नेक्स्ट थिंग इज, वाइल आई सेट थिंकिंग ऑफ सम रिप्लाई, शी पुट अनदर क्वेश्चन, फादर, व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू? बट देन she heard something down in the street. At once she ran to the window crying, "Akabuli wala, akabuli wala." Sure enough, enough का मतलब क्या होता है? काफ़ी. अपन हिंदी में बोलते हैं काफ़ी, that is enough. So sure enough, in the street below was a काबुली वाला passing slowly along. वहाँ से काबुली वाला गुजर रहा था धीरे धीरे. He wore the loose clothing of his people with a big turban. There was a big bag on his back and in his hand he carried boxes of grapes. So काबुली वाला एक जगह से जा रहा था सामने वाला. तो उस काबुली वाले कैसे घूमते हैं? उन एक लूज से कपड़े पहनते हैं और सर पे उनकी एक पगड़ी होती है और उनके हाथ में एक बैग था और बैग के साथ साथ कुछ बॉक्सेस थे जिसके अंदर अंगूर थे. ओके, सो आगे क्या लिखा है? द काबुली वाला टर्न्ड एंड looked up at the child. Overcome by terror, Minnie fled to her mother for protection. So यहाँ पे काबुली वाले को देख के मिनी डर गई और अपने मदर के पास चली गई कि मुझे बचाओ. टेरर का मतलब क्या होता है? डरना, डर गई. एंड फ्लेड मतलब चली गई. किसके पास गई? टू हर मदर. She had a blind belief that inside the big man's bag there was 2 or 3 other children like herself. But meanwhile, the peddler came in and greeted me with a smile. So, उसको ऐसा लगा कि वो इतना बड़े बैग में उसके जैसे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और ये वो अपने मम्मी को बता रही थी कि इतने में ही वो काबुली वाला पेडलर का मतलब क्या होता है? जो दूसरी जगह से आया कुछ सामान बेचने वाला, उसको क्या बोलते हैं अपन? पेडलर. सो वो पेडलर घर के अंदर आ गया और उसको ग्रीट करने लगा. आई मेड सम स्मॉल परचेज, देन आई हैड अ लिटिल कन्वर्जेशन विथ हिम अबाउट हिज कंट्री. as he was about to leave, he asked, where is the little girl, sir? सो उसके पापा ने यहाँ पे अपने लिखा है कि उनने फिर उससे कुछ ख़रीदा और उससे कुछ बातें करी कि उसकी कंट्री में क्या क्या होता है. तो काबुली वाला जो लिखा है, तो काबुली वाला मतलब होता है जो लोग अफ़गानिस्तान से आए हैं. सो उसके कंट्री के बारे में उससे कुछ
पूछने लगा। As he was about to leave, he asked, "Where is the little girl?" तो जैसे ही काबुली वाला वापस जाने लगा, उसने पूछा कि सर वो बच्ची कहाँ है छोटी सी। Thinking that Minnie would get rid of her false fear, I had her brought out. She stood by my chair looking at a Kabuliwala and his bag. He offered her nuts and raisins, but she was not tempted. She clung close to me. So यहाँ पे लिखा है कि उसने मिनी को फिर अंदर से बुलाया और उसको बोला कि आप मिलो काबुली वाले से, और वो जाके अपने पापा के पास चेयर के पास जाके खड़ी हो गई। फिर काबुली वाले ने अपने बैग में से कुछ नट्स और रेजिन्स निकाल के दिए। नट्स मतलब काजू वगैरह को अपन नट्स बोलते हैं, रेजिन मतलब किशमिश को रेजिन्स बोलते हैं। ओके, बट शी वॉज नॉट टेम्प्टेड। नॉट टेम्प्टेड का मीन्स उसको लालच नहीं आया, और उसने शी क्लंग क्लोज टू मी एंड शी क्लंग क्लोज टू मी। तो ये क्लंग का मतलब क्या है कि वो अपने पापा से पास आ गई और पापा को पकड़ लिया उसने। दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग। वन मॉर्निंग नॉट मेनी डेज लेटर आई हैड टू गो समवेयर। एज आई वॉज लीविंग द हाउस आई वॉज स्टार्टलेड टू फाइंड मिनी लाफिंग एंड टॉकिंग विद द ग्रेट काबुलीवाला। सो स्टार्टलेट मीन्स चौक जाना। सो एक दिन उसके पापा बाहर गए तो उन्होंने देखा, वापस आए तो मिनी हंस रही थी, अच्छे से बात कर रही थी, और किससे? काबुली वाले से। शी वॉज सीटेड ऑन अ बेंच एंड काबुलीवाला वॉज सिटिंग एट हर फीट। मिनी हैड नेवर फाउंड सो पेशेंट अ लिसनर ऑल हर लाइफ। द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल साड़ी वॉज already stuffed with almond and raisins. Why did you give her those? I said. I took out a coin and handed it to him. So जब वो फादर वापस आया तो उन्होंने देखा कि काबुली वाले से आज तो अच्छे से बात कर रही है। फिर उसने देखा कि काबुली वाला के पास में वो बैठी हुई है और उसको काबुली वाले ने खूब सारे आलमंड्स और रेजिन्स दिए। आलमंड्स मतलब बादाम एंड रेजिन्स मतलब किशमिश। सो उसके फादर ने उसको काबुली वाले को बोला, आप फ्री में नहीं दोगे, मैं आपको कुछ पैसे दूंगा इसके लिए। फिर क्या हुआ? ऑन माई रिटर्न एन आवर लेटर आई फाउंड दैट द कॉइन हैड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ट्रबल. Kabuliwala had given it to Minnie and her mother was shouting, "Where did you get this coin?" "The Kabuliwala gave it to me," said Minnie cheerfully. "The Kabuliwala gave it to you?" cried her mother, much shocked. Luckily for Minnie, I entered just then and saved her from any thrashing. So, क्या हुआ? जब उस मिनी के पापा ने जो उस काबुली वाले को जो सिक्के दिए थे, वो काबुली वाले ने मिनी को वापस कर दिए, और मिनी उस सिक्के को लेके अपने मम्मी के पास गई तो मम्मी चौंक गई और उससे पूछा कि फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस कॉइन, मतलब तुम्हें कॉइन कहाँ से मिला? और उसको फिर डांटने लगी और उससे बोला, फिर मिनी ने बताया कि द काबुली वाला गेव इट टू मी। उसकी मम्मी डर गई और रोने लगी और चौंक गई कि भाई काबुली वाले ने तुम्हें क्यों पैसे दिए। इतने में उसके फादर एंटर्ड एंड क्लियर्ड एवरीथिंग विथ हर मदर एंड सेव्ड हर फ्रॉम थ्रैशिंग। थ्रैशिंग लिखा है मतलब पिटाई से बचा लिया। थ्रैशिंग मीन्स पिटाई। तो अच्छी पिटाई से उसने अपने बेटी को बचा लिया, मम्मी वरना उसको बहुत मारती। लेटर आई केम टू नो दैट इट वॉज नॉट द फर्स्ट एंड द सेकेंड टाइम द टू हैड मेट. The Kabuliwala had overcome the child's fear by the bribery of nuts and almond. Bribery means rishwat. So, bribery of nuts and almond. The two had become great friends and had many common jokes. For example, Minnie would say, "Oh Kabuliwala, what have you got in your bag?" And he would reply, "An elephant." So, अब दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई. Now both have become a good friend, and now Minnie would start to joke around the Kabuliwala. Like when Kabuliwala moves around her house, she shouted, "Oh Kabuliwala, what have you got in your bag?" Means तुम्हारे बैग में क्या है? तो काबुलीवाला कहता है an elephant, एक हाथी है. So ऐसा जोक करते थे. Not much cause for merriment perhaps, but how both of them enjoyed the joke. सो मेरीमेंट का मतलब क्या होता है? हैप्पी टॉक एंड लाफ्टर, मतलब दोनों के बीच में हंसी मजाक शुरू हो गया.
Then the Kabuliwala would take his turn and say, "Well, little one, why when you are going to the father-in-law's house?" फादर इन लॉ मतलब क्या होता है कि अपने हस्बैंड के घर कब जाओगी। उसने इस काबुली वाले ने बोला कि वो छोटी बच्ची तुम अपने फादर इन लॉ के घर कब जाओगी। फादर इन लॉ मतलब अपने हस्बैंड के फादर के घर पे कब जाओगी। देन द काबुली वाला take his turn and say, "Well, little one, when you are going to the father-in-law's house?" Minnie was yet only a little child. She had no idea of what a father-in-law is, but she would not show her ignorance. With ready tact, she would say, "Are you going there?" So, ready tact. What is the meaning of tact? Ready tact is intelligent. मतलब एकदम से उसने एक समझदारी वाली बात करी। हाजिर जवाबी कहते हैं अपन इसको हिंदी में। ओके, सो अमंग मैन ऑफ द काबुलीवाला क्लास द वर्ड फादर इन लॉ हाउस हैव अ डबल मीनिंग। दे आर अनदर नेम फॉर जेल। सो फादर इन लॉ का काबुली वालों के बीच में एक अलग मतलब भी होता है, जिसका मतलब क्या होता है, जेल। मतलब तुम अपने पति घर जाओगी, कब जाओगी ऐसा पूछा उसने। इसका मतलब यह था कि तुम जेल में कब जाओगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत उनसे काम कराते हैं, इसलिए उसको दूसरा नाम क्या दे के रखा उन्होंने, जेल। A place where we will, they are another name for jail, a place where we are well cared for at no expense to ourselves. The Kabuliwala would take Minnie's question in this sense. He would shake his fist at the invisible policeman and said, "I will thrash my father-in-law." At this, Minnie would go into pearls of laughter, in which her father would also join. So, इसका फुल सेंटेंस का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब है कि मिनी को बोला कि आप अपने फादर इन लॉ के घर पे कब जाओगी। तो मिनी ने बोला मैं अपने फादर इन लॉ को भी मार दूंगी। इस बात पर उसके फादर भी हंसे, मिनी भी हंसी और काबुली वाला भी हंसा। सो मिनीज मदर वॉज फुल ऑफ डाउट अबाउट काबुली वाला। ऑफन शी वुड बैग मी टू कीप एन आई ऑन द टॉल बिग मैन. I would try to laugh her fear away, but then she would say seriously, "Were children's never kidnapped?" मिनी की मम्मी टेंशन में थी कि काबुली वाला बाहर से आया है और अपने बच्चे से इतने पास में है, तो तुमको डर नहीं लगता क्या अपने बच्चे को कोई किडनैप कर लेगा। In spite of all my explanation and assurance, her fear persisted. Persisted means रह गया, मतलब उसने खूब एश्योरेंस दिया कि कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद भी उसका जो टेंशन था मम्मी का वो कभी कम नहीं हुआ। बट आई डिडंट थिंक इट राइट टू फॉरबिड द मैन फ्रॉम कमिंग टू अवर हाउस एंड द इंटीमेसी वेंट ऑन अनचेक्ड। बट इससे क्या हुआ कि उसके फादर ने बोला, बट मैं ये नहीं कर सकता कि उस आदमी को मेरे घर, फॉरबिड मीन्स रोक दूँ। उस फॉरबिड I didn't think it right to forbid the man from coming to our house and the intimacy went on unchecked. इससे क्या होगा, इंटीमेसी मतलब फ्रेंडशिप, जो फ्रेंडशिप होती है उसको अपन कहते हैं, क्लोज फ्रेंडशिप होती है उसको अपन कहते हैं इंटीमेसी। सो आई डिडंट थिंक इट राइट टू फॉरबिड द मैन फ्रॉम कमिंग टू अवर हाउस एंड द इंटीमेसी वेंट टू अनचेक्ड. Once a year in the middle of January, Rahman the Kabuliwala would return to this country. Then he would be very busy going from house to house collecting his debt. This year, however, he always found time to see Minnie. If he could not come in the morning, he would appear in the evening. One morning, I was reading a book in my study. So, one morning, I was reading a book in my study. Study मतलब ऑफिस, मतलब एक जगह जहाँ पे अपन शांति से पढ़ाई करते हैं। अपना जो बच्चों का स्टडी रूम होता है, ऐसे ही बड़े लोग भी अपना एक स्टडी बना लेते हैं। It was about 8 o'clock and the weather was chilly. ठंडी का टाइम था। All at once I heard an uproar in the street. So उसने एकदम से बाहर देखा तो बाहर गदर हो रही थी। uproar means गदर। When I looked out, I saw Rahman being led away by 2 policemen. Behind them was a crowd of curious boy. So उसने जब खिड़की से बाहर देखा तो रहमान जो काबुली वाला था उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, और उसके पीछे कुछ क्राउड थे जिसमें क्यूरियस बॉय थे। मतलब क्यूरियस मतलब जो बहुत सारा इंटरेस्ट लेते हैं किसी चीज़ में, उसको अपन कहते हैं क्यूरियस। सो क्यूरियस बच्चे लोग उसके साथ में थे। देयर वेयर ब्लड स्टेन्स ऑन द क्लोथ ऑफ द काबुली वाला एंड वन ऑफ द
Policeman carried a knife. Hurrying out, I stopped them and inquired what it all happened. All I hurried out, I stopped them and inquired what it all meant. So उनने देखा कि ब्लड स्टेन, मतलब काबुली वाले के कपड़े में ब्लड स्टेन लगा हुआ है. ब्लड स्टेन मतलब खून के दाग, और पुलिस वालों के हाथ में चाकू भी था. तो उनने वो जल्दी से बाहर गया, मिनी का पापा, देखने के लिए कि ऐसा क्या हुआ. पार्टली फ्रॉम वन, पार्टली फ्रॉम अनदर, आई गैदर्ड व्हाट अ सर्टन नेबर्स हैड ओन द peddler some money for a Rampoli shawl, but had falsely denied having bought it. In a course of heated argument, Rahman had struck the man with a knife, and he is now calling his enemy all sort of names. मिनी के फादर ने पहले बाहर गया और देखा कि क्या बोलते हुआ क्या है यहाँ पे. तो उनने सबसे एक खबर लिया तो पता लगा कि भाई रहमान कुछ समय पहले रामपुरी शॉल बेच के गया था और लोगों ने उसको पैसे देने से मना कर दिया. डिनाइड मतलब मना करना, ठीक है. गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना, गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना और इकट्ठा करना, इकट्ठा होना. और आर्ग्यूमेंट मतलब बहस होना. जब कोई दो लोगों के बीच में बहस होती है या बहुत सारे लोगों के बीच में बहस होती है, उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं. तो जब बहस हुई तो रहमान ने अब चाकू निकाल के उस लोगों के ऊपर नाम लेने लगा, लोगों को कुछ कुछ बोलने लगा, ठीक है. सडनली इन अ वरांडा ऑफ माई हाउस अपीयर्ड माई लिटिल मिनी एज यूजुअल. शी एक्सक्लेम्ड, ओ काबुली वाला, काबुली वाला. अब इतने में मिनी बाहर आई और उसने देखा काबुली वाले को और वो चिल्लाने लगी, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला. रहमान फेस lit up as it turned to her. He had no bag under his arm today, so she could not discuss the elephant with him. She at once proceeded to the next question. Are you going to the father-in-law's house? Rahman laughed and said, just there, I am going, little one. Then seeing what the reply had not amused the child, he held up his chained hand and said, I would have thrashed this old father-in-law, but my hands are bound. So ये जब मिनी को देखा तो रहमान के चेहरे पे हंसी आ गई, खुशी आ गई. और मिनी ने उसके पास में बैग नहीं देख के अपना क्वेश्चन नहीं पूछ पाई कि आज तुम्हारे बैग में क्या है. जब ये नहीं पूछ पाई तो उसने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा कि तुम अपने फादर इन लॉ के घर पे जा रहे हो क्या, जिसका मतलब क्या होता है जेल. तो रहमान हंसा और बोले, हाँ ये देखो मैं जेल जा रहा हूँ. सो उसने अपने हाथ दिखाया और उसमें हथकड़ी दिखाया. तो उसमें उसने क्या बोला, आई वुड हैव ट्रैश दिस ओल्ड फादर इन लॉ बट माई हैंड्स आर बाउंड. आई वुड थ्रैश दिस ओल्ड फादर इन लॉ बट माई हैंड्स आर बाउंड. सो थ्रैश्ड मतलब मारता. मैं इन सबको संभाल लेता, दोनों पुलिस वालों को संभाल लेता, मगर इनने मेरे हाथ में हथकड़ी डाल दी. Rahman was sentenced to some years imprisonment. Time passed by and he was not remembered. Even our little Minnie, I am ashamed to say, forget her old friend. New companions filled her life. As she grew older, she spent more of her time with the girl of her age. So रहमान को कुछ साल की सज़ा हो गई, जेल में गया और समय बीत गया और मिनी उसके बारे में सब कुछ भूल गई. अब मिनी के बहुत सारे लड़कियां उसकी उम्र की हैं, दोस्त हैं. अब years has passed. It was the day Minnie's marriage. Since early dawn, the wedding pipes had been sounding. I was sitting in my study, looking through the accounts. Suddenly, someone entered and saluted respectfully. It was Rahman, the Kabuli wala. At first, I did not recognize him, but I knew him again when he smiled. So, जब बहुत सारे ईयर चले गए, समय बीत गया, अब मिनी इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी हो गई. सो जब शहनाई वगैरह बज रही थी तो मिनी के फादर अपने स्टडी में बैठ के अकाउंट्स चेक कर रहे थे कि कितना खर्चा हुआ, सब हिसाब कर रहे थे. इतने में उसने देखा कि कोई आदमी आया और उसको सलाम किया. और उसने जब देखा तो वो कौन था, काबुली वाला. सो पहले वो उसको पहचान नहीं पाया और जैसे ही उसको देखा तो उसके चेहरे पे हंसी आ गई. सो हाउ आर यू रहमान, आई आस्क्ड. व्हेन डिड यू कम? आई वॉज let out of prison yesterday evening, he replied. The words struck harsh upon my ears. I thought his coming was not a good omen because it was a day of Minnie's marriage. So omen का मतलब क्या होता है,
ओमन का मतलब होता है शगुन, मतलब बुरा शगुन है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रहमान जब आया तो उसके पापा ने बोला कि तुम कब वापस आए, तो उसने बोला कि मैं कल ही जेल से छूटा। तो इसको सुनते ही मिनी के फादर चौंक गए और कहने लगे ये अच्छा शगुन नहीं है, आज मेरी बेटी की शादी है। देयर वॉज सेरेमनी गोइंग ऑन एंड आई एम बिजी एंड आई सेड कुड यू कम अनदर डे। At once he turned to go, but as he reached the door, he turned and said, may I not see the little one, sir, for a moment? So it was, इसके आगे पढ़ते हैं, it was his belief that Minnie was still the same. In memories of former days, he had brought her few of almonds, raisins and grapes. He had wrapped them carefully in a piece of paper. So अब रहमान को क्या हुआ, रहमान को जब उसके फादर ने बोला चले जाओ यहाँ से, कल आना, तो रहमान चला गया, मुड़ने लगा और अपने दरवाजे की तरफ जाने लगा। उतने में वो पलट के कहता है कि क्या मैं एक बार बच्ची से मिल सकता हूँ। सो रहमान के दिमाग में अभी भी ये था कि मिनी छोटी सी बच्ची है। सो उसके लिए वो अभी भी काजू किशमिश वगैरह लेके आया था, एक अच्छे से पेपर में फोल्ड करके। सो देयर देयर इज़ अ सेरेमनी इन द हाउस। I said again, you won't be able to see anyone today. At this, the man's face fell and he went out. I felt a little sorry. I was going to call him back, but he was returning of his own accord. Accord means खुद में ही अपने आप से ही वापस आने लगा. So he came close to me and said, sir, I brought this few things for a little girl. Will you give them to her? I took them and was going to pay him, but he caught my hand and said, kind sir, don't offer me any money. I too have a daughter like her in my home. I think of her and bring fruits for your child, not to make any profit. Saying this, he took out from his pocket a small piece of paper. With great care, he smoothed it out on the table. It bore the impression of a little girl's hand, the impression of an ink smeared hand laid flat on the paper. So उसने बोला कि आप बाद में आना, और वो जो अपने गेट से जाने लगा तो फिर इसके फादर ने बुरा लगा और बोला कि क्या मैं इसको वापस बुला लूँ, और वो ये सोचने लगा। इतनी ही देर में खुद काबुली वाला वापस आ गया, और काबुली वाला वापस आके कहता है कि ये कुछ फ्रूट्स हैं, ये मैं उसके लिए लाया हूँ, नट्स वगैरह, तो आप उसको दे दोगे। तो उस समय उसके फादर ने वो लिया और उसको पैसे देने लगा। तो वो काबुली वाला उसको कहता है कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरे भी बेटी है, मेरे को उसको देखता हूँ तो उसकी याद आती है, तो मैं इसलिए उसके लिए फ्रूट्स लाया हूँ, पैसे कमाने के लिए नहीं लाया हूँ। तो यही कहते हुए उसने अपने पॉकेट से एक पेपर निकाला जिसमें एक छोटा सा हैंड प्रिंट था। तो उस हैंड प्रिंट को दिखाने लगा। इंक, यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, द इम्प्रेशन ऑफ एन इंक स्मीयर्ड हैंड लेड ऑन अ पेपर। इंक स्मीयर्ड मतलब इंक में डूबा हुआ हाथ का एक फ़ोटो, उसमें हाथ प्रिंट हुआ रखा था पेपर में। सो उसके आगे क्या लिखा है, टीयर केम टू माई आईज, आई वेंट फॉर मिनीस इमीडिएटली, मैनी ऑब्जेक्शंस वेर रेज्ड बट आई वुड नॉट लिसन। मिनी केम एंड स्टूड बैशफुली बिफोर मी, शी वॉज क्लैड इन हर रेड सिल्क ऑफ हर वेडिंग डे। सो यही सुनते हुए मिनी के पापा की आंखों में आंसू आ गए। उनने बोला कि मैं मिनी को बुला के आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सो जब वो वहाँ गया तो मिनी शर्माते हुए खड़ी हुई थी, और शी वॉज क्लैड मतलब ड्रेस्ड, मतलब वो पहनी हुई थी। बैशफुली मतलब शर्माना, ठीक है। बैशफुली बिफोर मी, वो मेरे सामने शर्मा के खड़ी थी, और अपने रेड सिल्क मतलब एक कपड़े का तरीका होता है जो शादी के टाइम पे पहनते हैं। सो एक रेड कलर के कपड़ों में मेरे सामने खड़ी हुई थी। फिर क्या लिखा है, द काबुलिवाला लुक डीपली एस्टोनिश्ड, एट लास्ट ही स्माइल्ड एंड सेड, लिटिल वन, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉस हाउस? But Minnie now understood the meaning of the word father-in-law. She flushed up at the question and kept standing before him with her face turned down. So अब मिनी बड़ी हो गई थी, काबुली वाला को भी भूल गई थी और उसके जोक को भी भूल गई थी। अब उसको ये नहीं पता था कि काबुली वाला क्या बोल रहा है। सो काबुली वाले ने जब उससे बोला कि अब तुम सही में अपने फादर इन लॉ के घर में जा रही हो, सो ये सुन के मिनी को कुछ समझ में नहीं आया। मिनी ने सोचा कि ये तो मैं सही में फादर इन लॉ के यहाँ जा रही, तो उसने हाँ करके अपनी मुंडी नीचे झुका ली। आफ्टर शी हैड गॉन, रहमान हीव्ड अ डीप साई. The idea had suddenly came to him that his daughter too must have grown during all this year. He would have to make friends with her
anew, and beside that what might not had happened to her in these 8 years. यही जैसे उसने सोचा, और उसने ये सोचा कि जब ये इतनी बड़ी हो गई तो मेरी बेटी घर में कितनी बड़ी हो गई होगी, और उसकी भी अब शादी की उम्र हो गई होगी। तो ये सोचा, और उसने बोला उसने लिखा क्या बोला, ही वुड हैव टू मेक फ्रेंड्स विथ हर अन्यू। मतलब अब उसको उससे नए तरीके से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि 8 साल से वो जेल में था, तो उसको अब नहीं पता कि उसकी बेटी कितनी बड़ी हो गई। तो अब वो अपने घर जाएगा तब पता लगेगा, मगर तब तक वो कहाँ पे था, यहीं पे था, जेल में। आई टुक अ बैंक नोट एंड गेव इट टू हिम, गो बैक टू योर ओन डॉटर रहमान in your own country, I said. May the happiness of you meeting bring good fortune to my child. The marriage pipe sounded to me, their music sounded all the sweeter to think that in the distant land a long lost father would meet again his only child. So उसके फादर ने क्या किया, अपने जेब से, मिनी के फादर ने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले और काबुली वाले को दिया, और बोला कि तुम जाओ काबुली वाला, अपने कंट्री में जाओ, अपने बच्ची के पास जाओ, और तुम जाओगे उससे मिलोगे तो उससे मेरे बच्चे को भी आशीर्वाद मिलेगा। और यही सुनते हुए पीछे से शादी की शहनाइयाँ बजने लगी, और उसके फादर को वो बहुत अच्छा लगा सुन के कि उसके वजह से अब उसका एक फादर अपने बच्चे से मिल पाएगा जो बहुत दूर है, वो बहुत टाइम से नहीं मिला। सो विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ दिस यूनिट, and we will do the question and answer of this unit later on in the next class. Till then, read this unit once again by your own, and if you have any doubt, ask in the group. Thank you.